On this auspicious occasion of 7th of December 2024, it is also reminded to all the superiors that TOS is more superior than any other textbook or any other teacher that has taught anything or has been teaching right now, who is alive right now. And before we get into that, you need to understand two things. First thing, it is not about ego. And how it is not about ego? More than 4 hours lectures are already given on the topic of ego. And it is proved that Hitesh Shake is the most egoless person. First thing. Second thing, the word superior in superior society is not comparative, but in English terms, if we are comparing, then it can be compared and can be said that you is superior than rest of the things. And now we'll see how. So, according to SSD or Superior Society Dictionary or Superior Dictionary or Dictionary of Superiority, the word superior with capital S means becoming your better version and improving yourself and coming into your true expression. That is superior. It is not comparative. If it is comparative at all, then it is comparative to your self version, your previous version, your past self. But in English, the word small letter word superior means comparative. So if we are comparing, then it can be proved that TOS are superior than anything else in the world, in the history of mankind. Will just look into it. But second thing needs to be understood is that Hitesh Shakya is the most egoless person in the history of mankind on this planet. Again, using those lectures on ego. मतलब हम आपको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हितेश शाक्य मानव जाति के इतिहास के सबसे ईगोलेस आदमी है पूरी पृथ्वी पर। ये हमने समझा रखा है 5 घंटे के लेक्चर्स में, जिसको ट्रांसक्राइब कर रहे हैं क्रिएटर्स की टीम वाले। वो एक पुस्तिका का निर्माण करेंगे, उससे एक फ्री ई बुक का निर्माण करेंगे जिसका नाम होगा हितेश शाक्य द मोस्ट ईगोलेस मैन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ऑन दिस प्लानट। तो फर्स्ट थिंग अंडरस्टूड, सेकंड थिंग सुपीरियर कैपिटल एस अंडरस्टूड, देन स्मॉल लेटर सुपीरियर अंडरस्टूड। फिर हम आपको बता रहे हैं कि जो भी प्रसिद्ध लोग आज जीवित हैं, जैसे कि प्रशांत है, संदीप है, वासुदेव है और रविशंकर है फॉर एग्जांपल, और रामदेव है, ये सब लोग कितने गलत गलत काम कर रहे हैं। और रजनीश जो मरे हुए लोग हैं, रजनीश है, राजीव दीक्षित है, इन सब लोगों ने हमसे कम सुपीरियर काम कैसे किया, ये हम साबित करेंगे कुछ देर में। So the greatest argument that comes forward in order to prove that Hitesh Shake is the greatest man of all time is the argument between Rajneesh and Pawan Juri. According to Pawan Juri, all social problems can be solved exclusively through right laws and citizen rights, which I also 100% believe in. But what Rajneesh was doing, Rajneesh gathered a lot of awakened and revolutionary minds, millions of revolutionary minds, and kept them misguided and away from political activism and political reform, because of which he gave people false hope, he gave false solutions. That means he did not consider political consciousness, which Hitesh Shakya considered, and because of which all work or life of Rajneesh is inferior than TOS. And then Pawan Juri says that neuroplastically not every human can be changed. The swabhav, the dharma is the primary. That means according to Pawan Juri, not every human is transformable. That proves that his work is also, मतलब आप समझ रहे हैं ना, पवन जूरी कह रहे हैं कि इंसान जो है वो ट्रांसफॉर्मेबल नहीं है, इंसान बदलते नहीं। और हम भी फील्ड में उतरे हैं 4-5 सालों से पॉलिटिकल एक्टिविज्म करने, और हमको लाखों लोग ऐसे मिल रहे हैं जिन्होंने ऐसा बोला कि मैंने दुनिया को बहुत सुधारने की कोशिश की, बहुत सुधारने की कोशिश की, दुनिया में कोई सुधरता नहीं, सब गाली देते हैं और जूत खाने को मिलते हैं। और पवन जूरी ने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं, कंसेप्ट भी दिया है बिट्रेल बाय बेनिफिशरीज का, कि जिसका भला करते हो वो उल्टा जूत मारता है, मतलब कि वो बदलता नहीं तो सोसाइटी बदलती नहीं। ऐसे बहुत लोगों ने अपने जीवन से कंक्लूजन निकाला है। मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं कि ह्यूमन माइंड ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, तो उधर काम ही मत करो, सारा का सारा काम पॉलिटिकल एक्टिविज्म पे करो, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पे करो। तो जब ये बात प्रूव हो गई, तो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के बारे में जो भी टीचर बात नहीं कर रहा है, वो वासुदेव हो कि प्रशांत हो कि संदीप हो, वो सारा का सारा इंफीरियर काम कर रहा है टीओएस के सामने। वेरी 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 क्लियरली यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू।
आप समझ रहे हैं ना, हर इंसान जो प्रसिद्ध है और मानव जाति के इतिहास में प्रसिद्ध रहा है, सब कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, उन सारी गलतियों को सॉल्व करने वाले यदि मानव जाति के इतिहास में है तो वो हितेश शाक्य हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। मतलब गौ माता को बचाने की और स्वदेशी की बात रजनीश नहीं कर रहा, और प्यार करने की और तांत्रिक सीक्रेट सेक्सुअलिटी की बात राजीव दीक्षित नहीं कर रहा। इसका मतलब टीयूएस के सामने ये दोनों के दोनों फेल हो गए। टीओएस के सामने ध्रुव राठी फेल हो गया, प्रशांत फेल हो गया, संदीप तो पूरी तरीके से फेल हो गया भाई साहब। संदीप का जो असल में खुद का धंधा है ना, वो पूरी तरीके से न्यूरोप्लास्टिकली लोगों को गुलाम बनाने वाला है। एड का तो पूरा धंधा और फोटो का पूरा धंधा इतना फेक फ्रॉड धंधा है भाई साहब। संदीप का काम तो इनफाइनाइट इंफीरियर है टीओएस के सामने। संदीप को बीट करना बहुत जरूरी है भाई साहब हमारे लिए। आप सब लोग का बहुत जरूरी है हमारे साथ में आना। संदीप को बीट करना पड़ेगा। और 40 मिनट का हमारा लेक्चर है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होने की आध्यात्मिकता, प्लीज अंडरस्टैंड। 40 मिनट्स का लेक्चर है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स की आध्यात्मिकता, जिसमें हमने साबित किया है कि कोई भी ऐसा म्यूजिशियन या कलाकार जो कि बहुत बड़े स्टेज पर पहुंच गया और बहुत दुनिया में प्रसिद्ध हो गया और पूरी दुनिया उसका नाम जानती है, ये एक बहुत ही गलत चीज़ है भाई साहब। ये इंसान की स्पिरिट के साथ में बलात्कार करती है भाई साहब। 40 मिनट का लेक्चर देके आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है भाई साहब कि ए आर रहमान का और जाकिर हुसैन का और वो कौन है गाने वाला, सोनू निगम ले लो, अरिजीत सिंह ले लो, इन सब का हितेश शाक्य से ज़्यादा फेमस होना मानव जाति के लिए बहुत गलत है भाई साहब। आप समझ नहीं पा रहे हैं। पूरा लॉजिकली लेक्चर हम दे देते हैं, उसके बावजूद भी आप हमको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। और एक्टिंग के संबंध में हमने गरम मसाला पे कमेंट्री की थी। एक्टिंग के संबंध में और भी आपको बताएंगे कि एक्टिंग करने वाला जो एक्टर है वो इतना प्रसिद्ध और करोड़पति क्यों हो जाता है, क्योंकि सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी एक्टिंग पर काम नहीं करते। और एक्टिंग क्या होती है? एक्ट ऑफ लिविंग। तो जैसे वो जी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, वो एक एक्ट कर रहा है, बोल रहा है, एक्ट कर रहा है। तो वो जो एक्ट करने की जो वर्ब है, एक्टिंग है, उस पर वो काम नहीं कर रहा है। तो वो शाहरुख खान को देख रहा है तो शाहरुख खान प्रसिद्ध हो जा रहा है। तो शाहरुख खान का प्रसिद्ध होना भी सोसाइटी में गलत है, संदीप का प्रसिद्ध होना भी गलत है, अरिजीत सिंह का प्रसिद्ध होना भी गलत है, मोदी का प्रसिद्ध होना सबका गलत है भाई साहब। अगर मानव जाति के इतिहास में किसी का प्रसिद्ध होना सबके हित में है तो वो हितेश शाक्य का और सुपीरियर सोसाइटी का और टीचिंग्स ऑफ सुपीरियरिटी का होना है भाई साहब। आप इस बात को लॉजिकली समझाने के बाद भी क्यों नहीं समझ रहे और इस पर आप काम करना क्रांति के साथ क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? So it is not a matter of ego, it is a matter of complete logic, complete science, complete evidence, complete common sense that Hitesh Shakya is the greatest IITian of all the time, greatest musician of all the time, greatest politician of all the time, greatest social reformer of all the time, greatest spiritual master of all the time, greatest writer of all the time. Please understand. मतलब मैं बहुत बड़ा राइटर हूं और मेरी किताबें पढ़ लिख दी हूं, मैं किताबें पढ़ लो, ये ऐसा टाइप का राइटर थोड़ी ना है हम। अबे हम तो बस बोलते हैं और लिखते हैं और सबको बोलते हैं और लिख लिख के बोलते हैं कि तुम भी लिखो और तुम भी बोलो और ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा बोलो, ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा लिखो और कम बोलो और गम बोलो। हम तो लिखाने वाले राइटर हैं, हम तो राइटर्स से भी श्रेष्ठ राइटर हैं। अब आ जाते हैं स्पीकर्स पे। तो मानव जाति के इतिहास में हम सर्वश्रेष्ठ स्पीकर कैसे हैं हम आपको समझाते हैं। हमको दो ही स्पीकर काम के लगते हैं, राजीव और रजनीश। राजीव जो है वो औरत और आदमी के प्यार को मानता नहीं, उसकी दिव्यता और नैसर्गिकता को देख नहीं सकता, तो उसका काम पूरा जीरो है, इंफीरियर है। फिर रजनीश, रजनीश पॉलिटिकल एक्टिविज्म को टच नहीं करता, तो उसका काम भी जीरो है, इंफीरियर है। और रजनीश तो इतना कच्चा आदमी है, उसने 40 साल तक सिर्फ मुंहचोदी करी, किताब पढ़ो और मुंहचोदी करो और मुल्ला नसरुद्दीन के एकदम यूजलेस किस्से सुनाओ। हमारे सारे किस्से हमारे फील्ड से, हमारे लाइफ से निकले हुए होते हैं भाई साहब। रजनीश ने कोई संगीत बजाया नहीं, कभी कोई भाषा सीखी नहीं, संस्कृत का स उसको आता नहीं, और उसने इंजीनियरिंग पढ़ी नहीं, और उसने फील्ड में अनजान लोगों से बात करने की कला पे काम नहीं किया, उसने अनजान स्त्रियों के, हजारों अनजान स्त्रियों से बात करने की कला पे काम नहीं किया, उसने किसी भी चीज पे काम किया ही नहीं, उसने बस बकचोदी काटी है। उसका सारा का सारा काम एंटायरली इंफीरियर है टीओएस के सामने। ओशो को जीरो करना पड़ेगा भाई साहब।
तो आप समझे ना भाई साहब, सभी राजनेताओं से श्रेष्ठ हम, सभी शिक्षकों से श्रेष्ठ हम, सभी धर्म गुरुओं से श्रेष्ठ हम। हिंदुत्व को बचाने वाला एक भी धर्म गुरु नहीं है इस पूरी दुनिया में जो हिंदू बोर्ड की बात करता हो। प्लीज अंडरस्टैंड। अगर कोई धर्म गुरु है या कोई स्पिरिचुअल गुरु है जो एकमात्र बात करता है इस पूरी दुनिया में, तो वो हम हैं भाई साहब। और इसकी वजह से हम श्रेष्ठ हैं वासुदेव से, रविशंकर से, सभी से। और दयानंद से तो, विवेकानंद से तो इनफाइनाइट श्रेष्ठ हैं। दयानंद तो जानता ही नहीं था आरएएस के बारे में, तभी तो वो मूर्ति पूजा का खंडन करता था। और विवेकानंद ने तो सारा का सारा पॉलिटिकल एक्टिविज्म जीरो कर दिया भारत का। ये सब लोग निम्न स्तर के हैं भाई साहब हमारे सामने। इन सबको दबाना पड़ेगा और हितेश शाक्य को इन सबके ऊपर बिठाना पड़ेगा। ये आपका फर्ज होना चाहिए अपने जीवन का। Today is 7th of December 2024, and this is to remind you that in November 2024, 168 people sent 67458, and average comes out to be 401. That means apart from that, people of course have contributed in other forms, several other forms. So any person who is in my contact personally on ground or on WhatsApp or Facebook or Telegram or IG or FB or YT, anywhere, I want each and every person to be participating in the movement of superiority. If he or she is not participating, then they are wasting my time, my attention, and my energy, and unnecessarily increasing useless carbon footprint in superior society and in my life, and they are my enemies, so they must get out of my life as soon as possible. मतलब रजनीश का सारा काम ये रहा है कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को टच मत करो और लोगों को ही ट्रांसफॉर्म होने के लिए मजबूर करो, और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का मजाक उड़ाओ, उसके खिलाफ लोगों को भड़काओ। और पवन जूरी कह रहे हैं कि किसी भी इंसान को गुलाम मत बोलो, किसी इंसान से आशा मत रखो कि वो कुछ बदलेगा या कुछ क्रांति करेगा। उसको जलील मत करो, उसको भड़काओ मत, उसको मोटिवेट मत करो, उसको जागरूक मत करो, उससे कुछ आशा मत करो। आप सिर्फ और सिर्फ एक्टिविस्ट को पकड़ो, उनको कनेक्ट करो, उनकी नेटवर्किंग करो, सही कानून आएगा तो दुनिया बदल जाएगी। मतलब पवन जूरी बोल रहे हैं कि 0% ऑन ह्यूमन कॉन्शियसनेस, और रजनीश बोल रहा है कि 0% ऑन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। दैट प्रूव्स दैट वर्क ऑफ बोथ ऑफ दीज इज completely inferior than teachings of superiority, which talks about political consciousness in 20% and wealth conscious and rest of the consciousness, total 5 consciousness in 20%. Please understand very clearly and carefully. मतलब क्या है कि सोसाइटी में और इंटरनेट पर जो भी शिक्षक है, जो भी इन्फ्लुएंसर है, यदि वो सोसाइटी की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पे काम नहीं कर रहा है, इंक्लूडिंग ध्रुव राठी, बिकॉज ध्रुव राठी इज अगेन प्रीचिंग हीरोइज्म कि ये लोग गलत हैं, वो लोग सही, और ये आदमी गलत है और वो आदमी सही है। वो सिटीजन राइट की बात नहीं कर रहा, वो सिटीजन्स को, ये जो लीडर है ना, उसके नैतिक चरित्र से इंडिपेंडेंट नहीं रख रहा। सोसाइटी में सिटीजन्स को राइट देने की बात नहीं कर रहा, जूरी की और राइट टू रिकॉल की बात नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि जितने फेमस प्रशांत, संदीप और ध्रुव राठी हैं, ये गलत कर रहे हैं भाई साहब। और सारे सुपीरियर्स का और सारे ऑडियंस का ये फर्ज होना चाहिए कि इन सबसे ज़्यादा हितेश शाक्य और टीओएस का प्रचार होना चाहिए भाई साहब। सुबह से लेकर शाम होना चाहिए, और सुबह से लेकर शाम होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए, और पूरे जग के अंदर हितेश शाक्य का और सुपीरियर सोसाइटी का नाम होना चाहिए। नहीं तो बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हुआ, और बहुत ही गलत होने वाला है। आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से लॉजिकली समझ लो। और पूरी मानव जाति के इतिहास में आप समझिए, जो टॉप इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक परफॉर्मेंस को एकदम प्रूव करने वाला है, जो क्लास है, जो आईआईटियंस क्लास है, उस पूरी आईआईटियंस क्लास में, पूरी आईआईटी की हिस्ट्री में इतने सारे आईआईटियन हैं, पूरी दुनिया में इतने सारे अरबपति हैं आईआईटियंस, इतने सारे अधिकारी हैं, इतने सारे क्रांतिकारी हैं। इनमें से किसी भी एक ने भी मानव जाति के इतिहास में ये बिंदु नहीं उठाया है दैट 78%, आई रिपीट, for past 25 years guaranteed 78% IITians are not becoming engineers। ये हितेश शाक्य के अलावा मानव जाति के इतिहास में किसी ने भी ये मुद्दा नहीं उठाया है। तो प्रशांत तो पूरा इंफीरियर है हितेश शाक्य के सामने भाई साहब। वो मनोहर पारिकर गोवा का मिनिस्टर भी जीरो है, सब IITians जीरो है भाई साहब।